Now, part 6 video of chapter 2. After completing what? Electric potential due to our system of charges, we have to proceed with what? And also after completion of what? Equipotential surface. Okay, we have to start what? A new topic, that is what? Relation between electric field and potential. Relation between electric field and potential. First of all, as we know, electric field and potential both are related to each other, but we have to derive a relation. As we know the formula for the electric field, if you write simple formula, E is equals to force upon charge. Simple formula. If I write the formula for potential, V is equals to W by Q. That means what? What is the meaning of electric field? When force is performed on a what? Test charge or charge. What is the definition of potential? When work is performed on what? Charge. Are you getting? So both are dependent on what? Charge. So that's why what we have to proceed the relation by considering a what? A source charge. हम क्या करेंगे? एक source charge को consider करके इस relation को develop करने की कोशिश करेंगे. Now, what you have to take? You have to take a source charge, that is what? +2 charge. हमने एक +2 source charge लिया और उसको कहाँ पर place रखा? Point P पे, point O पे हमने उसको place किया. Because it is a charge, it will develop some amount of electric field radially outwards. Now, what we are doing here, we are considering two positions randomly. We are considering two positions randomly nearby what? A source charge. Suppose the 2 points are what? A and B, separated by a small distance, that is what? dr. It is not compulsory that you have to take dr. You can take also what? dx also. It is not compulsory. Okay. So what we are taking here? We are taking what? A to B small displacement, that is what? dr. Now, as we know, what is the basic formula for the potential? पोटेंशियल का ये फॉर्मूला तो है बेसिक फॉर्मूला. एक फॉर्मूला हमने डिराइव किया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए. V इज इक्वल टू क्या डिराइव किया था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q बाई R. ये रिलेशन था. अब देखो यहां पर दैट मींस व्हाट? V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? R. R को बढ़ाओगे V कम होते जाएगा. What is the distance of a point from the source charge? अब देखो इस पॉइंट O से इस पॉइंट A का डिस्टेंस ज्यादा है. It is far away and पॉइंट B का डिस्टेंस कम है. तो सपोज मान के चलो A पॉइंट पे हमने एज्यूम किया पॉइंट A है, तो हमने क्या लिया? इस पॉइंट पे VA लिया. अब इस दो पॉइंट के स्ट्रेट लाइन क्यों डेवलप हुआ? बिकॉज वी आर कंसिडरिंग टू पॉइंट्स A and B. So first of all we have to join these 2 points. As we know, what about the direction of electric field? The direction of electric field is always in the direction of what? The line joining the points from the charge. Are you getting? So what about direction of electric field? ये क्यों? अब मान के चलो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमने क्या रखा? एक सोर्स चार्ज रखा. A पॉइंट पे Q0 सोर्स चार्ज. क्या रखा? सोर्स चार्ज Q0 पर. तो ये चार्ज इस पे क्या लगाएगा? एक रिपल्सिव फोर्स लगाएगा. डायरेक्शन ऑफ फोर्स इस साइड होगा. ठीक है. तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स इस साइड होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में क्या होती डायरेक्शन पे होगा. ठीक है, बहुत अच्छी बात है. दैट मींस व्हाट? इट इज हमने ये पहले डिटरमाइन कर लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है क्या. डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? आगे की तरफ है. तो और उसके बाद अगर हम मान के चलते हैं कि इस पॉइंट ए पे लेट अस अज्यूम that at point A, the potential at point A is what? And also, suppose at point B, the potential is what? V plus dV. ये V plus dV क्यों हुआ? Because as we move towards the source charge, potential of a particular
पॉइंट इंक्रीजेस, किसी भी पॉइंट में आगे जाते जाऊंगा तो क्या होता जाएगा, पोटेंशियल इंक्रीज होते जाएगा। व्हाई सो, बिकॉज आपने आर को कम किया है। रिलेशन है 1/4 क्यू बाई रिलेशन करवा, रिलेशन देखना 1/4, इट इज व्हाट, इनवर्स रिलेशन। तो जितना कम करोगे आर को, पोटेंशियल क्या होता जाएगा, बढ़ते जाएगा। तो आपने क्या देखा कि वीए पे अगर वी पोटेंशियल है, वीबी पे क्या पोटेंशियल होगा, वी प्लस डीवी होगा। अब इस डेरिवेशन को प्रोसीड कैसे करना है, इसको याद रखने का तरीका क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू पता होना चाहिए, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो पहले फोर्स को डिटरमाइन करो, इसको डिटरमाइन करो फोर्स को। तो फोर्स कैसे डिटरमाइन होगा, ये चार्ज इस पर कुछ फोर्स लगा रहा होगा, द एक्सटर्नल फोर्स। अब सुनो, ये तो ठीक है, ये फोर्स लगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब मान के चलो ना, सपोज वी आर मूविंग, इस पॉइंट पे पोटेंशियल भी है, इस पॉइंट में भी पोटेंशियल वी प्लस डीवी, पोटेंशियल डिफरेंस है। इफ अ टेस्ट चार्ज इज मूव फ्रॉम ए टू बी, अगर हम एक टेस्ट चार्ज को ए से बी मूव करते हैं, खुद चला जाएगा क्या, नहीं जाएगा। राइट, सो बिकॉज देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। क्योंकि हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा है। इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज में क्या पढ़ा है, अगर पोटेंशियल किसी भी सरफेस का पोटेंशियल सेम हो तो वर्क डन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, अगर पोटेंशियल डिफरेंस है तो वर्क डन की रिक्वायरमेंट डेफिनेटली होगी। और यहाँ पर वर्क डन कितना, वर्क डन के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, वर्क डन कितना करना है पहले। और इन टर्म्स ऑफ मैकेनिकल क्वांटिटी की बात करूं तो व्हाट इज वर्क डन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट द फॉर्मूला फॉर द व्हाट, फोर्स। So what is the formula for the force here? The external force required to move test charge against the electric field. देखो, ये बेचारा यहाँ पर खड़ा है, ये इसको रेपल कर रहा है, इसको धकेल रहा है, ठीक है। अगर हम इस पे वर्क, हमें क्या करना पड़ेगा, अगर ए से बी में किसी टेस्ट चार्ज को मूव करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस पे कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। कुछ ना वर्क कैसे करोगे, जब तक फोर्स लगाओ तो डिस्प्लेसमेंट होगा क्या, नहीं। तो हम क्या करेंगे, इस पे एक एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे। जब एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो फोर्स का फॉर्मूला किस पे डिपेंड करेगा, हम किस पे एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, जो चार्ज, जो पॉइंट ए पे कौन सा चार्ज है, टेस्ट चार्ज Q0। अब Q0 इंटू ई वेक्टर, ये फॉर्मूला बताया था मैंने, E इक्वल्स टू F बाई Q0, है ना, वही तो है। यहां से देखो बेटा, F इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, E इंटू Q, हाँ कि ना, E इंटू Q। यहां से क्या हो गया, E into Q। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज। इट इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज। तो यहां पर Q इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज, बट व्हाई नेगेटिव साइन हियर, बिकॉज वी आर मूविंग द टेस्ट चार्ज अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन, डायरेक्शन उधर है, हम टेस्ट चार्ज को मूव कर रहे हैं राइट टू लेफ्ट, और डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है, लेफ्ट टू राइट। So we are moving in this direction, the direction of electric field in this direction. So what about the force? Force is what? It is in the what? Negative of electric field. Both are in opposite direction. ये इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन और मैकेनिकल फोर्स उधर लगा रहे हैं, हम इधर लगा रहे हैं। तो बोथ किस डायरेक्शन पे, ऑपोजिट डायरेक्शन, बिकॉज वी आर मूविंग टेस्ट चार्ज फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट। तो यहां पर क्या आ गया, माइनस ऑफ Q0 इंटू ई। समझ गए इतना ना, ये एक एक चीज को याद रखना है। अब द वर्क, ये तो होगा तुम्हारा मैकेनिकल की टर्म में, फोर्स हमने पहले डिटरमाइन किया। अब वर्क डन क्या होगा, द वर्क डन टू मूव टेस्ट चार्ज फ्रॉम ए टू बी। अब कितना वर्क डन होगा, व्हाट इज वर्क डन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब यहां पर सर आपने dr वेक्टर लिखा, अरे dr वेक्टर मतलब हम ए से बी की तरफ जा रहे हैं, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पे जा रहे हैं, इसलिए यहां पर हमने वेक्टर स्पेसिफाई किया। लेकिन मैग्नीट्यूड क्या होता है वर्क का, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट नथिंग टू dr माइनस ऑफ Q0 इंटू ई इंटू dr, ये फर्स्ट इक्वेशन। ऑल्सो द वर्क डन इन मूविंग टेस्ट चार्ज फ्रॉम ए टू बी। ये तो हो गया तुम्हारा मैकेनिकल वर्क डन हो गया। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट की फोर्स को हमने चार्ज के फॉर्म में लिख दिया, क्योंकि फोर्स की वैल्यू कितनी है, माइनस ऑफ Q0 इंटू ई। अब यहाँ पर ई को वेक्टर लिखने की जरूरत नहीं, बिकॉज वी आर डीलिंग विद व्हाट, ओनली मैग्नीट्यूड। Now, also we can write the another formula for the work done. Also the work done is moving test charge from A to B.
जब ए से बी को हम मूव कर रहे हैं तो हमने ये फॉर्मूला भी लिखा, एक और फॉर्मूला भी सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला? इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल, राइट? सो बिकॉज वी हैव टू डिराइव अ रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। अभी हमने वर्क डन को इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में लेके आ गए। अब क्या करेंगे हम? बाय दिस फॉर्मूला, बाय द बेसिक फॉर्मूला, V is equals to वर्क डन बाय चार्ज, हम निकालेंगे वर्क डन। कैसे निकालेंगे? पोटेंशियल को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? चार्ज से। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। वर्क इक्वल्स पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है इन दोनों पॉइंट के बीच में? VB माइनस VA की VA माइनस VB होगा, VB माइनस VA, बिकॉज VB इज एट हाइयर पोटेंशियल। VB किस पोटेंशियल पे है? हाइयर। क्यों? यहां पर देख लो, VB का पोटेंशियल का V प्लस DB, और यहां पर क्या है? V है, तो बड़ा कौन सा है? VB। तो V माइनस VA इंटू क्यू नॉट। और अगर मैं इसको लिखूं इस टर्म में, थोड़ा सा शॉर्टकट करूं, V माइनस VA मतलब स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ dV, स्मॉल अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, बिकॉज तो दोनों बीच में अगर डिस्प्लेसमेंट dr है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा? dV होगा। पोटेंशियल डिफरेंस देखो यहाँ पर कितना है? ये V और V प्लस dV कितना होगा? रख दो वैल्यू, रख दो यहाँ पर, रख दो V प्लस dV माइनस ऑफ V इंटू क्यू नॉट, है ना? तो क्या होगा? ये V और ये माइनस V कैंसल आउट, है ना? ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो क्या बचेगा? W इज इक्वल टू dV इंटू क्यू नॉट, और dV इंटू क्यू नॉट आ गया। ये तुम्हारा सेकेंड इक्वेशन, इसको लिखूं, ये भी वर्क डन, ये भी वर्क डन, इक्वेटिंग। इसके बाद इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, by equating first and second equation, because both are representing what? Work done. So what is the formula? dV into q naught is equals to minus of q naught into E into what? dr. क्यू नॉट कैंसल आउट, क्या बचा? क्या हो जाएगा? E इज इक्वल टू माइनस ऑफ dV बाय dr। ये माइनस उधर चले जाएगा, माइनस ऑफ dV बाय dr। दिस इज द रिलेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस, फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। Electric field is nothing but what? Minus of dV by dr. फिर राइट डाउन इसके नीचे लिख लेना, where further write down the quantity dV by dr is the rate of change of potential difference. The rate of change of potential लिखना with distance, rate of change of potential with distance, and is called potential gradient. तो ये है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड और माइनस ऑफ dV बाई dr के बीच में। सीधा सा कॉन्सेप्ट है। अगर आपको डेवलप करना रिलेशन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव डेवलप अ रिलेशन बिटवीन व्हाट? वर्क डन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज वर्क डन एंड पोटेंशियल। दोनों रिलेशन को इक्वेट करके
you have to derive this condition. This is most important. इससे एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं डायरेक्टली, और ये पूछता है व्हाट डू यू मीन बाय dV by dr. dV by dr is the rate of change of potential. देखो E is equals to minus of dV by dr. Rate of change of potential होगा with respect to dr. पोटेंशियल में कब चेंज आएगा? जब किसमें चेंज आएगा? आर में चेंज आएगा. अगर आर चेंज होगा तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? डीवी भी चेंज जाएगा, पोटेंशियल भी चेंज जाएगा. व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? व्हाट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट? द क्वांटिटी dV by dr is the rate of change of potential. rate of change of potential मतलब rate of change of potential मतलब dV with distance. with distance, distance कितना है? dr. rate of change of potential मतलब dV with distance dr and is called potential gradient. इसे क्या बोलते हैं? potential gradient. तो dV by dr क्या है? ये है potential gradient. Thank you so much for this video. Okay. If you don't get this derivation, please comment on my YouTube channel or personally text me on my WhatsApp number. Thank you.